ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ بے پردہ کاظم شاہ کے بستر پر پڑی تھی۔ وہ کل کاظم شاہ کے نکاح میں آئی، جسے کاظم شاہ نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد کاظم نے پانی سے بھرا جھگ بے ہوش وانیہ پر الٹ دیا۔ وہ خوف و ہراس سے جاگی تو جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ لگتا ہے بہت تکلیف میں ہو۔ ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ دراصل جس جرم کی وجہ سے تمہارا نکاح مجھ سے کیا گیا، اسے تمہارے بھائی نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ وہ بے یقینی سے کاظم کو دیکھنے لگی۔ اور تمہیں تکلیف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم اس بابا کی بیٹی ہو جس نے میرا حق کھایا۔ یہ کہتے اسے رات کا منظر یاد آیا جب وہ چاہ کر بھی اسے برباد نہیں کر سکا تھا اور وانیہ کے بے ہوش ہوتے ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اندھیرے کمرے میں نیم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ خاموشی کی چادر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک طوفان چھپا تھا۔ وانیہ کا جسم ساکت پڑا تھا، بستر کی سفید چادر میں لپٹی وہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ اس کی سانسیں مدھم تھی۔ اچانک ہی برف جیسے ٹھنڈے پانی کا پورا جگ اس کے وجود پر انڈیل دیا گیا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھلیں اور سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جسم میں درد کی تیز لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے گوشت میں خنجر اتار دیا ہو۔ آنکھیں کھلنے کے باوجود منظر دھندلا تھا اور سانس سینے میں اٹک رہی تھی۔ سامنے کھڑا وہ شخص بے رحم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سا سکون اس کے چہرے پر تھا، جیسے کسی زخمی پر نمک چھڑک کر خوش ہو رہا ہو۔ لگتا ہے بہت تکلیف میں ہو، کاظم شاہ کی آواز گونجی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی، جبکہ وانیہ نے بمشکل اپنی پلکیں جھپکی۔ کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ وانیہ نے خود کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر درد کی شدت نے اسے بے بس کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ کاظم شاہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ایک زہریلی ہنسی ہنسا۔ جس جرم کی وجہ سے تمہارا نکاح مجھ سے کیا گیا ہے، وہ تمہارے بھائی نے نہیں کیا۔ وانیہ کا دماغ سن ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں حیرت، خوف اور الجھن کے سائے تھے، مگر زبان گنگ ہو چکی تھی۔ کیوں؟ بمشکل اس کے لب ہلے اور ایک مدھم سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کاظم شاہ کی آنکھوں میں شدید نفرت ابھری۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اس عذاب سے گزرو جو میرے خاندان نے سہا، کیونکہ تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے میرا حق کھایا تھا۔ وانیہ کا سر چکرا کر رہ گیا۔ میرے بابا؟ ہاں، کاظم شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ وہی شخص جسے تم نیک دل سمجھتی ہو، وہی شخص جس نے میرے والد کو تباہ کیا، وہی شخص جس نے میری ماں کو دربدر کیا، وہی شخص جس نے میرے باپ کو بے عزت کر کے ہمارے خاندان کو برباد کر دیا۔ اور تم جانتی ہو میں نے تمہیں کیوں چنا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا تمہیں وہی اذیت ملے جو میری ماں کو ملی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں وہی تکلیف ہو جو میں نے بچپن میں سہی تھی۔ وانیہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اس کے ذہن میں ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا اس کا باپ واقعی ایک ظالم شخص تھا؟ میں تمہیں برباد کرنا چاہتا تھا وانیہ۔ کاظم شاہ کا لہجہ مزید زہر آلود ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں توڑ دوں، تمہیں بے بس کر دوں، مگر تم جانتی ہو کل رات کیا ہوا؟ وانیہ کا جسم مزید سن ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کاظم شاہ نے گہری سانس لی، جیسے کسی بھاری بوجھ کو اتار رہا ہو۔ میں چاہ کر بھی تمہیں برباد نہیں کر سکا۔ میں تمہارے قریب آیا تھا۔ تمہاری گرم سانسیں، تمہاری بند آنکھیں، تمہارے گلابی لب، تمہاری خوبصورتی، سب میرے سامنے عیاں تھی، ہر چیز۔ مگر پھر بھی میں وہ حد پار نہ کر سکا جو شاید میرا نفس چاہتا تھا، جو میری نفرت نے مجھ سے کرنے کا تقاضا کیا تھا۔
जो मेरे दिल में पलने वाले इंतकाम ने मुझे करने पर मजबूर किया था, लेकिन मैं ना कर सका। वो एक लम्हे के लिए रुका, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे अपनी शिकस्त तस्लीम करने में उसे शर्मिंदगी हो रही हो। तुम बेहोश पड़ी थी, बेबस, लाचार, और मेरे लिए ये सबसे आसान था कि मैं अपनी नफरत की प्यास बुझा लेता, वो बदला ले लेता जिसकी आग सालों से मेरे अंदर दहक रही थी, वो गुनाह कर लेता जिसके बाद तुम हमेशा के लिए टूट जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं वो नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था, या शायद जो मैं समझता था कि करना चाहता हूं। वानिया के नीम व लब हल्के से कांपे, जैसे वो होश में आने की कोशिश कर रही हो, मगर अभी भी हकीकत की दुनिया में वापस ना आ सकी थी। काजिम ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुका हो। तुम समझती हो कि मैं एक वहशी हूं, एक दरिंदा, एक बेहिस आदमी। शायद मैं खुद भी यही समझता था, मगर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने उस लम्हे में खुद को शिकस्त दे दी, या शायद जीत गया, मुझे नहीं मालूम। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं वो सब कुछ कर सकता था जो मेरा नफ्स चाहता था, मगर मैंने खुद को ज़बरदस्ती पीछे हटा लिया, क्योंकि मैं वो शख्स नहीं बनना चाहता था जिससे मैं खुद नफरत करता हूं। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों कमज़ोर होते हैं, और मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहता था। ये अल्फाज किसी बम की मानिंद फटे। वानिया ने हल्की सी चीख के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर ये हकीकत नहीं कि वो एक ऐसे शख्स की कैद में थी जो उसे सिर्फ अपनी नफरत की भेंट चढ़ाना चाहता था, मगर उसके बावजूद वो उसके करीब नहीं जा सका था। आखिर क्यों? काजिम शाह ने गुस्से से रुख फेर लिया। वो खुद भी उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कल रात उसने ऐसा क्यों किया। क्यों उसने खुद को रोक लिया? क्यों वो उस लड़की को बर्बाद नहीं कर पाया? वो लड़की जो उसके दुश्मन की बेटी थी, वो लड़की जिसे वो हर कीमत पर तोड़ना चाहता था, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो सिर्फ उसे तकता रह गया और वो बेहोश हो गई थी। वानिया ने अपनी सूजी हुई आंखों से उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक सवाल उभरा। क्या यह शख्स वाकई सिर्फ इंतकाम लेने के लिए लेकर आया था, या फिर उसके अंदर कहीं कुछ और भी छुपा था? कमरे में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे के पीछे कई चीखें छुपी थीं। वानिया का जहन भारी था, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर बोझ डाल दिया हो। आंखें अभी तक नम थीं, दिल में हजारों सवाल थे। काजिम शाह कुर्सी पर टेक लगाए सिगार सुलगा रहा था। धुआं फिजा में बिखर रहा था, मगर वानिया के अंदर उलझन का तूफान बिखरता जा रहा था। उसने बमुश्किल खुद को संभाला और लरसती हुई आवाज में बोली, अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ तो उसमें मेरा क्या कसूर था? अगर तुम्हारे बाप को धोखा मिला तो इसका बदला मुझसे क्यों? काजिम शाह ने एक नज़र उस पर डाली। उसके लबों पर वही जहरीली मुस्कुराहट उभरी जिसने वानिया के दिल में खौफ की एक और लहर दौड़ा दी। कसूर? तुम्हारे लिए शायद ये कसूर ना हो, मगर मेरे लिए ये पूरी जिंदगी का इंतकाम है। तुम वो खून हो जो मेरे बाप का दुश्मन था। तुम उस शख्स की बेटी हो जिसके चेहरे पर मेरे बाप की बर्बादी की खुशी थी। तुम चाहे जितनी भी मासूम बनने की कोशिश करो, तुम्हारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जिसने मेरे खानदान को बर्बाद किया, और मैं उस खून को जलाकर राख करना चाहता हूं। वानिया ने बेयकीनी से सर झटका। तुम गलत हो। मेरे बाबा ने कभी तुम्हारे खानदान के बारे में बुरा नहीं किया, हमेशा इज्जत की। तुम झूठ बोल रहे हो। काजिम शाह ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर उसके करीब आया। वानिया ने खुद को पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर दीवार आ गई। वो चंद इंच के फासले पर खड़ा था। नजरें उसकी आंखों में उतार रहा था, जैसे उसके अंदर की गहराई को खोज रहा हो। तुम्हें सच जानना है? आओ, मैं तुम्हें वो रात दिखाता हूं जिस रात मेरे बाप को बर्बाद किया गया। वानिया की आंखें मजीद हैरत से फैल गईं। क्या मतलब?
काजिम ने मेज पर रखा लैपटॉप उठाया और उसमें एक वीडियो चला दी। वानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर एक तारीक कमरा नजर आया जिसमें एक शख्स फर्श पर गिरा हुआ था। उसके चेहरे पर लहू था और सामने खड़े 2 आदमी जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखो, ये तुम्हारे बाबा का असल चेहरा है। काजिम ने उंगली स्क्रीन पर रखी। ये वो रात थी जब मेरे बाप को धोखा दिया गया, जब उसे सबके सामने रुस्वा किया गया। उससे उसकी दौलत, उसकी इज्जत और उसकी बावफा बीवी को भी छीन लिया गया। और जिस शख्स ने सबसे ज्यादा कहकहे लगाए वो तुम्हारा बाबा था। वानिया की सांस अटक गई, आंखें हैरत से फैल गई। उसके सामने उसका बाबा था जो किसी शख्स को जमीन पर गिरा कर कह रहा था, यही अंजाम होता है कमजोरों का। अगर तुम मेरे सौतेले भाई ना होते तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। वानिया के पूरे बदन में लर्जिश दौड़ गई। वो चीखना चाहती थी कि यह झूठ है, मगर वीडियो किसी झूठ से ज्यादा खौफनाक थी। वो हकीकत थी जो उसकी आंखों के सामने चल रही थी। उसके जिस्म पर कपकपी तारी होने लगी। तुम्हारे बाबा ने मेरे बाप की इज्जत नीलाम की और तुम्हें लगता है मैं ये सब भूल जाऊंगा? काजिम शाह की आवाज में एक अजीब सा कर्ब था, मगर वो जहर भी उतना ही शदीद था। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वानिया ने सर झटका। मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं, वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए शायद वो नेक हैं, मगर हकीकत यही है कि वो एक धोखेबाज है। काजिम ने लैपटॉप बंद कर दिया और उसके करीब झुककर बोला, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने ये इंतकाम लेने के लिए कितने साल इंतजार किया, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम मेरे कैद खाने में हो और मैं तुम्हें उस वक्त तक आज़ाद नहीं करूंगा जब तक तुम्हारे अंदर की हर उम्मीद मर नहीं जाती, जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाबा के लिए हर भरोसा टूट नहीं जाता। वानिया के वजूद में एक सनसनाहट दौड़ गई, आंखों में शदीद खौफ उभरा। तुम मुझे कब तक कैद रखोगे? कब तक मुझे इस अजाब में मुब्तला रखोगे? काजिम ने एक जहरीली हंसी हंसी। जब तक तुम्हें यह एहसास ना हो जाए कि तुम्हारे अपनों ने मेरे अपनों के साथ क्या क्या किया था, जब तक तुम ये ना समझ लो कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज ताकत होती है, और ताकत तुम्हारे बाबा जैसे लोगों के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। वानिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। वो दीवार के साथ लगकर रोने लगी, मगर काजिम ने एक लम्हे के लिए भी नजर नहीं हटाई। उसकी आंखों में जीत की रोशनी थी, मगर कहीं ना कहीं एक दर्द भी छुपा था, वो दर्द जो सालों से उसके अंदर सुलग रहा था। याद रखो वानिया, अब तुम सिर्फ मेरी कैदी हो। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आखिरी वार किया, और जब तक मैं ना चाहूं तुम्हें कोई आज़ाद नहीं कर सकता। वानिया ने अपनी बंद मुट्ठियों को खोला और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका दिल चाहा चीखे कि सब कुछ खत्म हो जाए, मगर हकीकत ये थी कि वो इस कैद से आज़ाद नहीं हो सकती थी। वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और सबसे ज्यादा तकलीफ दे हकीकत ये थी कि उसका अपना बाबा उस तबाही की वजह से था। वानिया की दुनिया तारीक हो चुकी थी। उसका जहन सुन था, जिस्म बेजान लग रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो उन्हें पहुंचने की ताकत नहीं रखती थी। उसके सामने जो सच आया था वो किसी धमाके से कम नहीं था। उसका अपना बाबा, जिसे वो हमेशा अपनी जान से ज्यादा चाहती रही थी, जिसे वो हमेशा एक नेक और इज्जतदार इंसान समझती थी, वो इतना दोगला कैसे हो सकता था? मगर क्या ये सच था? क्या वो वीडियो हकीकत थी या काजिम शाह की तरफ से एक और चाल? मगर अगर वो चाल थी तो इतनी हकीकी कैसे लग रही थी? वानिया का दिमाग फटने लगा। वो सोचना नहीं चाहती थी, वो जानना नहीं चाहती थी, मगर हकीकत इतनी जालिम थी कि वो उसकी नज़रों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और काजिम शाह अंदर आया। उसके हाथ में चाय का कप था, मगर उसके चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी। वो वानिया के करीब आया और कप उसके सामने रख दिया। पियोगी या मजीद रोने का इरादा है? वानिया ने नजरें उठाकर उसे देखा। आंखों में उलझन थी, मगर उसके साथ ही नफरत भी थी।
مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ کاظم شاہ نے ایک مسکراہٹ سے سر جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے انکار کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے نظر انداز کر دو گی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا؟ نہیں وانیا، تم غلط ہو۔ تمہیں اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ تم میرے اختیار میں ہو۔ وانیا نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ اختیار؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے قید کر کے میری زندگی پر اختیار رکھ سکتے ہو؟ نہیں کاظم شاہ، تم ایک جابر ہو، تم ایک ظالم ہو، مگر میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گی۔ کاظم نے ایک زہریلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی اور وانیا کے قریب جھک کر بولا، جھکنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میری قید میں ہو، میرے رحم و کرم پر ہو، جو چاہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ وانیا نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ میں غلام نہیں ہوں، تمہاری قیدی ہوں، مگر غلام نہیں۔ کاظم نے کہا لگایا، قیدی اور غلام میں کیا فرق ہوتا ہے وانیا؟ قیدی وہ ہوتا ہے جو آزادی کی خواہش رکھتا ہے، مگر غلام وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں مالک کے حکم کا تابع ہوتا ہے۔ تم ابھی قیدی ہو، مگر تمہیں غلام بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وانیا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، میں تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ کاظم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، مگر پھر آہستہ سے بولا، دیکھتے ہیں کب تک اپنی بات پر قائم رہتی ہو۔ وانیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی، مگر وہ خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ اس آدمی کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ وانیا کے لیے اندھیرا صرف کمرے میں نہیں تھا، اس کی زندگی میں بھی اتر آیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جس دنیا کو چھوڑ کر آئی تھی، وہاں وہ آزاد تھی، بے فکر تھی، اس کی اپنی مرضی تھی، اپنے فیصلے تھے۔ مگر یہاں ہر چیز کاظم شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ایک قیدی تھی، مگر اس قید میں سب سے زیادہ اذیت ناک چیز کاظم شاہ کا رویہ تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سخت اور شفاق بن جاتا، اور دوسرے لمحے اس کی نظروں میں ایک عجیب سا درد جھلکنے لگتا، جیسے اس کے اندر بھی کوئی جنگ چل رہی ہو۔ مگر وانیا کو اس کی نفرت کے سوا کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی تھی، ذہن میں مسلسل خیالات کا طوفان تھا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخے، چلائے، سب کچھ توڑ دے، مگر وہ جانتی تھی کہ کاظم شاہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ ابھی بھی اسی کی قید میں تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ کاظم شاہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں کھانا رکھا تھا۔ اس نے وہ پلیٹ وانیا کے سامنے رکھی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، کھا لو۔ وانیا نے غصے سے اسے گھورا۔ مجھے تمہاری دی ہوئی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ کاظم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ایک طنزیہ ہنسی ہنس کر بولا، بہت ضدی ہو تم، لیکن یہ ضد زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ بھوک سب کچھ مٹا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ضد اور انا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وانیا نے نفرت سے کہا، تم مجھے توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر میں تمہیں بتا دوں کاظم شاہ، میں اتنی کمزور نہیں ہوں۔ تم لاکھ ظلم کرو، میں ہار نہیں مانوں گی۔ کاظم شاہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، تم خود کو بہت مضبوط سمجھتی ہو نا، مگر یاد رکھو طاقت ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو دوسروں پر حکومت کرنا جانتا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف ظلم کر رہا ہوں؟ نہیں وانیا، میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ اس دنیا میں کمزوروں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تم اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں طاقت کو سمجھنا ہوگا، تمہیں اپنی قسمت کو قبول کرنا ہوگا۔ وانیا نے حقارت سے کہا، طاقت؟ تم جس طاقت کی بات کر رہے ہو وہ صرف ظلم پر مبنی ہے۔ طاقت وہ ہوتی ہے جو کسی کی حفاظت کرے، نہ کہ کسی کی آزادی چھین لے۔ کاظم نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں، پھر بولا، یہ دنیا کمزوروں کے لیے نہیں بنی، یہاں صرف وہی بچ سکتا ہے جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتا ہو، اور میں اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ وانیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے حق کے لیے؟ تم مجھے قید کر کے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری زندگی،
میری عزت، میری آزادی، اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارا حق تھا؟ کاظم نے گہری سانس لی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر چاندنی بکھری ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، تم جو کہہ رہی ہو وہ تمہاری نظر سے صحیح ہو سکتا ہے مگر میری نظر سے نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو برباد ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا ہے، میں نے اپنے خاندان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس سب کا ذمہ دار تمہارا بابا تھا۔ میں نے برسوں اس لمحے کا انتظار کیا کہ میں اسے وہ درد دے سکوں جو اس نے میرے گھر والوں کو دیا تھا۔ وانیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ہر لمحہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس کی زندگی نے ایسا رخ کیوں لیا، کیوں وہ اس شخص کے اختیار میں آ گئی جس کی نفرت اس کی سانسوں میں زہر گھول رہی تھی۔ مگر وہ جتنا بھی سوچتی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا، اور کاظم شاہ جیسا شخص کسی کی التجاؤں یا آنسوؤں سے نرم نہیں پڑتا۔ وہ مضبوط تھا، طاقتور تھا، اور سب سے بڑھ کر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود وانیا نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس کے دل میں ابھی بھی امید کی کرن تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکل جائے گی۔ وہ ابھی بھی خود کو کاظم شاہ کے سامنے جھکنے سے روک رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کاظم شاہ کے پاس ہر ہتھیار تھا جو کسی بھی انسان کو توڑ سکتا تھا۔ اس نے پھر سے قریب آ کر کہا، کھانا کھا لو وانیا۔ وانیا نے سختی سے چہرہ موڑ لیا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری کوئی چیز، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق چلنے لگوں گی۔ کاظم نے کندھے اچکائے۔ تمہاری مرضی ہے، مگر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم خود کو اتنی تکلیف نہ دو، کیونکہ تم جتنا انکار کرو گی اتنی ہی اذیت میں جاؤ گی۔ وانیا نے گہری سانس لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کاظم شاہ اس کی کمزوری کو دیکھے۔ وہ اپنی بے بسی کو اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک بھوکی نہیں رہ سکتی۔ اس کا جسم کمزور ہو رہا تھا اور اس کا ذہن تھکن سے چکرا رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی شکست تسلیم کر لے۔ کاظم نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے وانیا، میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ بدلہ لینے کے بعد مجھے سکون ملے گا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے سکون نہیں مل رہا، بلکہ تمہاری یہ ضد مجھے مزید غصہ دلا رہی ہے۔ وانیا نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ تم نے سوچا کہ ظلم کر کے تمہیں سکون مل جائے گا، مگر سکون کسی کو برباد کرنے سے نہیں ملتا۔ کاظم نے آنکھیں تنگ کی۔ تم مجھے سکھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ وانیا نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں تم غلط ہو، کیونکہ جو شخص دوسروں کی اذیت میں خوشی ڈھونڈے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کاظم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں اس راستے پر چل نکلا ہوں جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ وانیا نے ایک تلخ ہنسی ہنس کر کہا، ہر راستے کی واپسی ہوتی ہے، بس انسان کو خود روکنا پڑتا ہے، مگر تمہارے لیے شاید یہ ممکن نہیں، کیونکہ تم نے خود کو اپنی نفرت کے حوالے کر دیا ہے۔ کاظم نے غور سے اسے دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں کہا، تم سمجھتی ہو کہ میں صرف نفرت کر سکتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے محبت ہو سکتی ہے؟ وانیا نے سخت لہجے میں کہا، محبت وہ کر سکتا ہے جو دوسروں کی تکلیف کو سمجھے، مگر تم تو دوسروں کے درد میں خوشی ڈھونڈنے والے انسان ہو۔ کاظم کچھ کہے بغیر پلٹ گیا، مگر جاتے جاتے کھانا وانیا کے سامنے رکھ گیا۔ وانیا نے کھانے کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کاظم یہ دیکھے کہ وہ کتنی کمزور ہو رہی تھی، مگر اس کا جسم اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے مزید بھوک برداشت کی تو وہ بے ہوش ہو سکتی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر پلیٹ اٹھانے لگی، مگر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے خود سے کہا، نہیں وانیا، تمہیں ہار نہیں ماننی، تمہیں اس کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا۔ مگر اس کی بھوک بڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ کاظم کتنی ہی دیر بعد واپس آیا
तो वानिया ने एक नवाला तक नहीं खाया था। उसने एक तंजिया हंसी हंस कर कहा, जानती हो वानिया, हौसले और बेवकूफ़ी में बहुत बारीक लकीर होती है और तुम उस लकीर को कब का पार कर चुकी हो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मगर तुम खुद को बर्बाद करने पर तुली हो। वानिया ने सख्त लहजे में कहा, तुम मुझे बर्बाद करके मुझे बचाने की बात कर रहे हो? ये तुम्हारी कैसी मुनाफकत है काजिम शाह। काजिम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं मुनाफकत कर रहा हूं? तुम्हें लगता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो गलत है? मगर तुमने ये नहीं जानती कि मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ अपना हक लेने के लिए कर रहा हूं। वानिया ने गुस्से से कहा, हक? तुम जुल्म कर रहे हो, उसे हक मत कहो। काजिम ने नजरें उस पर गाड़ दी। हक और जुल्म का फैसला हमेशा कमज़ोरों की ज़बान से होता है, और तुम भी एक कमज़ोर हो जो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रही है। मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। वानिया, तुम कमज़ोर पड़ रही हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारी आंखों में थकन है, मगर फिर भी तुम हार मानने को तैयार नहीं, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। वानिया ने सद लहजे में कहा, अगर तुम्हें मेरा हौसला इतना ही नागवार गुजर रहा है तो मुझे ख़त्म क्यों नहीं कर देते? क्यों बार बार मेरे सामने आकर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हो? काजिम ने एक गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मगर तुम समझने को तैयार नहीं हो। वानिया ने तल्खी से कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी, क्योंकि तुम्हें मैंने एक दरिंदा मान लिया है, और दरिंदों से सिर्फ नफरत की जा सकती है, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। काजिम की आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ चमका, जैसे कोई पुरानी याद उसकी आंखों के सामने आ गई हो, मगर वो जल्दी से संभल गया। नफरत, ये एक ऐसी चीज़ है वानिया, कभी कभी मोहब्बत नफरत से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, और तुम्हें नहीं पता, मगर तुम्हारी ये नफरत तुम्हें कहीं और ले जा रही है, एक ऐसी जगह जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वानिया ने तल्ख मुस्कुराहट से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर सकती हूं? काजिम ने धीमे लहजे में कहा, यही तो बात है वानिया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, मगर हकीकत यह है कि नफरत और मोहब्बत में सिर्फ एक लम्हे का फ़र्क होता है, और कभी कभी वो लम्हा खुद इंसान के इख्तियार में नहीं होता। वानिया ने सख्त लहजे में कहा, हकीकत, वो हकीकत जो तुमने खुद अपने हक में घर ली, जो तुमने अपनी नफरत के साए में छुपा ली। मुझे हकीकत जानने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस इतना मालूम है कि तुमने मेरे साथ जो किया वो किसी कीमत पर जायज़ नहीं हो सकता। तुमने मुझे अपने इंतकाम का हथियार बनाया, मुझे मोहब्बत के जाल में फंसा कर नफरत की भट्टी में झोंक दिया और मुझे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अफसोस काजिम शाह, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर अपनी भारी आवाज़ में बोला, तुम समझती हो ना कि मैं तुमसे इंतकाम लेने के लिए जालिम बन गया? तुम समझती हो कि मैं बिना किसी वजह के तुम्हें सज़ा देना चाहता था, मगर क्या तुम्हें मालूम है कि ये सब क्यों हुआ? तुम्हारा बाप, जिसे तुम नेक और सच्चा इंसान समझती हो, जालिम और बेरहम शख्स था, जिसने मेरे वालिद को बर्बाद कर दिया, जो तुम्हारे वालिद के भाई थे, मगर सिर्फ इसलिए कि उनकी माँ एक दूसरी औरत थी। तुम्हारे बाप ने उन्हें कभी अपनाया नहीं। तुम्हें पता है, वो बड़ा हुआ, उसने मेहनत की, अपना कारोबार खड़ा किया, मगर फिर क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने वो सब कुछ छीन लिया। एक साजिश के तहत, धोखे के तहत उसने मेरे वालिद की कंपनी पर कब्जा कर लिया, उसके साथ कारोबारी शराकत की आड़ में उसे तबाह कर दिया, और जब मेरे वालिद ने हक मांगा तो उसे बर्बाद करके रख दिया। मगर ये सब भी कम नहीं था। तुम्हें पता है वानिया, सबसे बड़ा जख्म क्या था? वानिया खामोशी से कांपती हुई खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। काजिम शाह की आंखों में गुस्से के शोले भड़क रहे थे, मगर उसके साथ दर्द भी था, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ वही समझ सकता था। तुम्हारे बाप ने मेरे वालिद को झुकाने के लिए मेरी माँ को अगवा करवा लिया। हाँ, मेरी माँ
जो एक मासूम और पाकबाज औरत थी, उसे ज़बरदस्ती कहीं छुपा दिया, और फिर तुम्हारे बाप ने ये अफवाह फैलाई कि वो किसी और मर्द के साथ भाग गई है। मेरे वालिद की दुनिया तबाह हो गई। वो बेबसी से हाथ मलता रहा, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। वो एक ईमानदार और उसूल पसंद शख्स था, मगर जब एक मर्द की इज्जत पर उंगली उठती है तो वो सिर्फ सच्चाई से अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। वो टूट चुका था वानिया, और तुम्हारा बाप फातेह बनकर खड़ा था। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहता था, मगर उसकी कामयाबी किसी और की बर्बादी पर बनी थी। काजिम ने वानिया की तरफ देखा, जो बेयकीनी से उसकी तरफ देख रही थी। मेरे वालिद इस जिल्लत के बोझ तले दबकर मर गए। वानिया, मेरी माँ कभी वापस नहीं आ सकी, और मैं उस दिन से जीते जी मर चुका था। तुम्हें लगता है मैं जालिम हूं? मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मगर तुम्हारे बाप ने मेरे खानदान की जड़ें काट दी थी। मैंने अपनी माँ को खो दिया, अपने वालिद को खो दिया, अपनी शनाख्त खो दी, मगर अब मैंने वो सब कुछ वापस ले लिया जो मेरा था। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वो मेरे सालों के दर्द के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तुम्हारी अजियत, तुम्हारी तकलीफ, वो सब कुछ मेरे दर्द का अशरे अशीर भी नहीं है वानिया। वो एक लम्हे के लिए खामोश खड़ा हुआ, फिर धीरे से आगे बढ़ा और वानिया के चेहरे पर नजरें जमा कर बोला, अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं गलत हूं? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने जो किया वो नाहक था? वानिया की आंखों में आंसू थे, मगर वो अल्फाज खो चुकी थी। वो चाहती थी कि कहे कि ये सब झूठ है, मगर काजिम की आंखों में मौजूद सच्चाई ने उसकी ज़बान बंद कर दी। वो जानती थी कि ये सब सच था, वो ये सब हकीकत थी जिससे वो लाइल्म थी। वो कांपते लबों से बोली, मैं नहीं जानती काजिम, मैं नहीं जानती कि क्या सच है और क्या झूठ, मगर ये जो तुमने कहा, अगर ये सब सच है तो मैं। काजिम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं वानिया, बस इतना जान लो कि मैंने ये जंग अपने लिए नहीं, अपने वालिदैन के लिए लड़ी है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम भी सच्चाई को कबूल करो। वानिया को लगा जैसे वो हवा में मुअल्लिक है, जैसे उसकी सारी दुनिया उलट चुकी हो। उसका बाप, जिसे वो हमेशा नेक और रहमदिल समझती रही थी, क्या वो वाकई इतना संगदिल था? क्या वाकई उसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी? मगर सच्चाई क्या थी? क्या वो वाकई अपने वालिद के गुनाहों की सज़ा भुगत रही थी? वो इस लम्हे बेबस खड़ी थी, मगर एक चीज़ यकीनी थी, अब उसकी ज़िंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। काजिम शाह वानिया के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही वहशत थी जो सालों उसके दिल में पल रही थी, मगर आज उसके लहजे में एक सुकून था, जैसे वो जो चाहता था वो हासिल कर चुका हो। वानिया उसके सामने बेयकीनी के आलम में खड़ी थी। उसके चेहरे पर सवालात की एक दुनिया थी, मगर काजिम के अल्फाज ने जैसे उसके वजूद को जकड़ रखा था। वो एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा, उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी कैद में रखूंगा। तुम समझती थी कि मैं तुम्हें हमेशा अजियत दूंगा। नहीं वानिया, मैंने तुम्हें कभी अपना कैदी नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें बस वो दर्द महसूस करवाया है जो मेरे वालिद ने सहा, जो मेरी माँ ने सहा, जो मैंने सहा। मगर अब सब ख़त्म हो चुका है। मेरा मकसद पूरा हो चुका है, मेरा इंतकाम मुकम्मल हो चुका है। अब तुम जा सकती हो, तुम आज़ाद हो। वानिया ने हैरत से काजिम को देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसकी सांस तेज हो रही थी, जैसे वो अल्फाज को समझने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो? काजिम ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका। हाँ, क्योंकि मैंने वो कर दिया जो मेरे बाप के साथ किया गया था। आज पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है कि मेहरान शाह की बेटी वानिया शाह अपने किसी आशना के साथ भाग गई है। हाँ वानिया, तुम्हारा वही बाप जो इज्जत और वकार का दावेदार था, आज उसकी बेटी पर वही इल्ज़ाम लगा दिया गया है जो उसने मेरी माँ पर लगाया था। आज वही बदनामी का दाग उसके दामन पर लग चुका है।
जो मेरे वालिद को दिया गया था। आज वही जख्म उसने महसूस किया है जो मेरे बाप ने सहा था। मगर मैंने तुम पर वो जुल्म नहीं किया जो तुम्हारे बाप ने मेरी माँ पर किया था। मैंने तुम्हें उसी लम्हे छोड़ दिया जब मेरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि मैं जालिम नहीं हूँ। वानिया, मैं बस अपने वालिद के हक की लड़ाई लड़ रहा था। मैंने तुम्हें कैद नहीं किया, मैंने तुम्हें सिर्फ एक आईना दिखाया है जिसमें तुम्हें हकीकत नजर आए। वानिया के लब कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। ये झूठ है, ये सब झूठ है। काजिम ने तंजिया कह कहा लगाया। अगर झूठ लगता है तो पूछ लेना अपने बाप से कि वजदान शाह कौन था। अगर मेरे बाप का नाम सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीरें आ जाएं तो समझ जाना कि वो कसूरवार है, मेरे बाप का, मेरी माँ का और मेरा। और अगर वो अब भी अपनी हठ धर्मी पर कायम होकर कहे कि वो वजदान शाह को नहीं जानता, तो उसे बता देना कि तुम्हें वजदान शाह के बेटे काजिम शाह ने अगवा किया था और अपनी कैद में रखा था। फिर देखना उसकी आंखों में तुम्हें कौन सी हकीकत नजर आती है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा बाप बेकसूर है तो जाकर अपनी जिंदगी गुजार लेना, मगर अगर तुम्हें सच्चाई मिल जाए तो इस बोझ के साथ जीना कि तुम्हारा बाप एक जालिम था जिसने मेरी माँ को बेइज्जत किया, जिसने मेरे बाप की जिंदगी छीन ली, जिसने मेरे वजूद को नफरत में धकेल दिया। वानिया के कदमों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू बेकाबू हो चुके थे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज साथ छोड़ चुके थे। काजिम एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे वो सब कुछ कहने के बाद भी सुकून महसूस ना कर रहा हो। मैं चाहता तो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकता था। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ वही सब कुछ कर सकता था जो तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ किया, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप की तरह कमज़र्फ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बस वो हकीकत दिखाई है जो तुम देखना नहीं चाहती थी। अब तुम जा सकती हो, मगर याद रखना, सच्चाई कभी छुपती नहीं, कभी ना कभी वो सबके सामने आ ही जाती है। वानिया की आंखों में शदीद तकलीफ थी। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, अगर मेरा बाप वाकई कसूरवार निकला तो? काजिम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो मुस्कुराहट दुख से भरी थी। तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी ये सोचकर गुजारनी होगी कि तुमने एक ऐसे शख्स को अपना मसीहा समझा जो हकीकत में किसी का कातिल था। अब फैसला तुम्हारा है वानिया, सच्चाई का सामना करना या झूठ में जीना। ये कहकर वो पलट गया, जैसे उसका मकसद मुकम्मल हो चुका हो, और वानिया वहीं साकित खड़ी रह गई, आंखों में बेयकीनी और दिल में एक ऐसा खौफ जो शायद कभी ख़त्म ना हो पाए। वानिया के कदमों में बोझ था, जैसे वो हर कदम के साथ ज़मीन में धंस रही हो, जैसे हर दरो दीवार उस पर तेज़ नज़रें गाड़ कर उसकी रूह तक छेद रहे हों। घर के दरवाजे के उस पार वो घर था जहां उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी थी, जहां उसकी हंसी गूंजी थी, जहां उसकी मां की ममता भरी गोद थी, जहां उसके बाप का मान था, जहां उसके भाई का तहफ़्फ़ुज़ था। मगर आज वही घर उसके लिए कैद खाना बन चुका था। वही दरवाज़ा जो हमेशा उसके लिए खुला रहता था, आज उसके लिए अजनबी था। मगर वो फिर भी कदम उठाती रही, जैसे अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। जैसे वो दहलीज पार करके अंदर दाखिल हुई, माँ की आंखों में बेकरारी, मोहब्बत, इल्तजा और खौफ सब कुछ था। मेरी बच्ची, माँ की लरसती आवाज़ कानों में पड़ी तो एक लम्हे के लिए वानिया का दिल चाहा कि सब कुछ भूलकर अपनी माँ की बाहों में समा जाए। मगर उससे पहले कि वो माँ की ममता के हिसार में पनाह लेती, उसके बाप की धाड़ती आवाज़ ने माहौल को चीर कर रख दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? तुमने जो जो किया वो कम था जो अब तुम दोबारा हमारे सर पर आ पहुंची हो। जानती हो कितनी बदनामी सहनी पड़ी है हमें तुम्हारी इस हरकत की वजह से। लोग हमारे मुंह पर थूकते रहे,
गली मोहल्लों में हमें जलील करते रहे, हमें ताने मिले, हमारा सर झुक गया। जब तुमने अपनी पसंद से निकाह कर ही लिया था तो फिर यहां आने की जुर्रत क्यों की? क्यों वापस आई हो? वानिया साकित खड़ी रह गई। उसके कानों में जैसे सीसा पिघल कर उतर रहा था, मगर वो खामोश थी। उसकी आंखों में वो सवाल थे जो शायद पूरी जिंदगी उसके जहन में नहीं आए थे, मगर आज वो हर पर्दा उठाने के लिए तैयार थी। वो बाप जो उसका मुहाफिज था, आज उसी की ज़बान जहर उगल रही थी। वो माँ जो हमेशा उसे तहफ़्फ़ुज़ देती थी, आज उसके आंसू सिसकियों में दबे जा रहे थे। उसके बाप की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो उसकी तरफ देखकर जैसे खुद पर काबू खो बैठा था। शुक्र करो कि तुम्हारा भाई घर पर नहीं है, वरना वो कुछ कहते कहते रुका, मगर वानिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने पहली बार अपने बाप की आंखों में छुपे हुए सच को देख लिया हो। उसने अपना सर उठाया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, जैसे अल्फाज हलक में अटक रहे हों, मगर फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, बाबा, वजदान शाह कौन था? ये नाम सुनते ही जैसे पूरे घर में सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे हर चीज अपनी जगह साकित हो गई हो। उसके बाप का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने अचानक उसकी सांसें छीन ली हों। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ आया, शर्मिंदगी की एक लहर आई, मगर फिर वो पलक झपक कर दोबारा अपनी सख्ती में वापस चला गया। क्या बकवास कर रही हो? कहाँ सुना तुमने ये नाम? उसके बाप की आवाज़ में वो घन घरच नहीं थी जो चंद लम्हे पहले थी, बल्कि उसके अंदर एक कपकपाहट थी, एक ऐसा राज था जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मगर वानिया आज किसी भी चीज़ के पर्दे में रहने के लिए तैयार नहीं थी। बताएं ना बाबा, कौन था वजदान शाह? क्या आप उसे जानते हैं? वानिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तलब थी, सच्चाई की। उसके बाप ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसके चेहरे पर लिखी कहानी छुपाई नहीं छुप रही थी। माँ ने सहमी हुई नज़रों से शौहर को देखा, जैसे वो भी पहली बार उसका ये चेहरा देख रही हो। वानिया ने उस लम्हे में जान लिया था कि सच्चाई उससे छुपाई गई थी, और वही सच्चाई आज हर बंद दरवाजे को तोड़कर बाहर आने वाली थी। उसके बाप ने एक कदम पीछे हटाकर रुख फेर लिया, जैसे उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं रखता हो। ये सब झूठ है। तुम्हें किसी ने बहकाया है, तुम्हें किसी ने वरगलाया है। वजदान शाह का नाम का कोई शख्स मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया, कभी नहीं। वानिया तलखी से मुस्कुराई, जैसे उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। अगर ऐसा है तो मेरे सवाल का जवाब देने से क्यों घबरा रहे हैं? अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं था वजदान शाह से, तो आपकी आंखों में ये बेचैनी क्यों है? आपके माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? आपकी सांसें बेतरतीब क्यों हो रही हैं? बाबा, सच बोलिए, क्या वाकई आप इस नाम को नहीं जानते, या जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये अल्फाज सुनकर उसके बाप ने एक झटके से रुख मोड़ा। उसकी आंखों में इस बार गुस्से के बजाय बेबसी थी, मगर वो कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से खड़ा रहा, जैसे उसकी ज़बान ने उसका साथ छोड़ दिया हो। वानिया के दिल में जैसे एक जलजला आ चुका था। वो चाहती थी कि उसका बाप उसकी आंखों में देखकर कह दे कि वो बेकसूर है, मगर उसकी खामोशी ने वो सब कुछ कह दिया था। उसके बाप का सच छुपाने की कोशिश करना ही उसके झूठ का सबसे बड़ा सबूत था। वानिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। तो फिर काजिम शाह सच कह रहा था। ये कहकर वो एक कदम पीछे हटी, जैसे वो उस घर की दीवारों से भी अजनबी हो चुकी हो, जैसे वो इस जगह का हिस्सा ना रही हो। उसकी माँ ने बेख्तियार आगे बढ़कर उसे थामना चाहा, मगर वानिया ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं अम्मी, मुझे जवाब मिल गया है और अब कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जबकि उसके पीछे उसका बाप अपनी जगह खड़ा रह गया। वो चाह कर भी उसे रोक नहीं सका, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसके सवाल का जवाब उसे मिल चुका है, और वो जवाब उसके लिए
سب سے زیادہ تلخ حقیقت تھا جو شاید وہ کبھی قبول نہ کر پاتی، مگر آج اسے ماننا پڑ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ ہی اس کہانی کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ وہ آزاد ہونے کے بعد بھی کاظم شاہ کے پاس واپس آ گئی تھی۔ پھر کاظم نے بھی اسے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ وانیہ کو واپس دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ اسے اپنے باپ کی حقیقت پر یقین آ چکا ہے۔ وانیہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ کاظم کی زندگی کے گزرے وقت کے زخموں کی اذیت کو اپنی محبت سے مرہم رکھ کر کم کر سکے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔